بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کہانی پوائنٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میں آپ کے لیے دلچسپ اور سنسنی خیز کہانیاں لائی ہوں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملیں سب سے پہلے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں اپنی شادی کے بعد پہلی بار پاکستان واپس آیا تھا۔ گھر کا ہر فرد ایئرپورٹ پر موجود تھا، جس میں میری 2 سال کی بیٹی رمشا بھی تھی۔ میری آنکھیں آمنہ کو ڈھونڈنے لگی تھیں، لیکن اس کو وہاں نہ پا کر میں تھوڑا بے چین سا ہو گیا۔ خیر، گھر والوں نے مل کر رمشا کو گود میں لیا تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ ریحان، اسے مجھے دے دو۔ آپا کی آواز آئی تو فوراً ہی میں نے آمنہ کا پوچھ لیا، اماں آمنہ کیوں نہیں آئی مجھے لینے؟ اور پھر اتنی چھوٹی سی بچی بھی بھیجتی۔ ریحان، تم پریشان نہ ہو، وہ گھر پہ تمہارے لیے کھانا بنا رہی ہے۔ وہ کون سا روز روز کام کرتی ہے؟ آج سب تمہیں ملنے آئے ہیں تو اس لیے کھانا بنا رہی ہے۔ آپا کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ ایئرپورٹ سے گھر تک کوئی 1 گھنٹے کا سفر تھا۔ میں پورا راستہ رمشا سے کھیلتا رہا۔ اب وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، لیکن دل اداس تھا۔ کاش آمنہ بھی آ جاتی۔ 3 سال ہو چکے ہیں اسے دیکھے۔ کیا کھانا اتنا ضروری تھا؟ نہیں، میرے دل میں کچھ عجیب سے سوال اٹھ رہے تھے۔ خیر، گھر کے دروازے پر پہنچے تو آمنہ پہلے ہی گاڑی کی آواز سن کر وہاں پہنچ چکی تھی۔ دور سے دیکھا تو دل چاہا جا کے مل لوں، لیکن نہیں، بس دور سے سلام کیا اور وہ ہلکے سے مسکراہٹ کے بعد پانی لینے چلی گئی۔ پورا دن مہمانوں کا آنا جانا رہا تھا۔ گھر والے بہت خوش تھے۔ میرے دوست احباب بندے آ رہے تھے۔ آمنہ کچن سے نکلی ہی نہیں، کبھی کسی کو چائے پیش کر رہی ہے تو کبھی کھانا۔ مانو یوں لگ رہا تھا جیسے میری آمنہ کہیں کھو سی گئی ہے۔ شام ہوئی تو کچھ رش کم ہوا، سب کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ سوچا آمنہ کی کچھ مدد کروں، صبح سے بس کام میں ہی لگی ہوئی ہے۔ ابھی اٹھا ہی تھا کہ اماں نے بلا لیا، ریحان میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، اماں آمنہ سے کچھ بات کرنی ہے، آ رہا ہوں ابھی۔ اسے چھوڑو، کام ختم کر کے خود ہی آ جائے گی۔ ویسے کون سا کام کرتی ہے؟ آج ہی کرنے لگی ہے تو کرنے دو۔ شاید یہ دوسری بات تھی جو آمنہ کے خلاف میرے دل میں لگی۔ صبح جب آپا نے کام نہ کرنے کا سنایا اور اب اماں کی بات پر میں چپ کر کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ شاید اماں ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں گی۔ آخر کو وہ میری ماں ہے، غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ رات کو جب سب سونے چلے گئے تو آمنہ سے کچھ بات کرنے کا موقع ملا۔ آمنہ اتنی چپ کیوں رہتی ہو؟ تم تو بولا کرتی تھی یار۔ یاد ہے پورا دن باس بس تمہیں چپ کرایا کرتے تھے، کبھی آفس میں ہم سے لڑائی تو کبھی میڈم ارحم سے۔ آمنہ اور میں ایک ہی آفس میں نوکری کرتے تھے۔ آمنہ مجھے پہلے ہی دن پسند آ گئی تھی۔ جب وہ پہلے دن نوکری پر آئی تھی، معصوم سی بولنے پر پورا طوطا سی تھی۔ ہم نے 3 سال تک ایک ساتھ جاب کی تھی۔ پھر مجھے باہر جانے کا موقع ملا تو جاب چھوڑ دی، لیکن آمنہ کو کبھی نہیں بھولا، اس کو اپنانا چاہتا تھا۔ تبھی ماں کو راضی کیا، جو کہ انتہائی مشکل کام تھا۔ خیر، آخر وہ دن آ ہی گیا جب ہم دونوں ایک ہو گئے تھے۔ بس ایک ماں کے لیے ہی میں اپنی شادی پر آ سکا۔ اس کے بعد ادھر ادھر دعوت اور گھومنا پھرنا لگا رہا۔ اسی میں پورا مہینہ ہی گزر گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ ریحان، میں بس آمنہ نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ رمشا نے رونا شروع کر دیا۔ آمنہ اس کو چپ کرانے اور سلانے میں لگ گئی۔ نہ جانے میری آنکھ کب لگی، پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح رمشا کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ آمنہ، یار رمشا کو دیکھو، یہ کیوں رو رہی ہے؟ پر رمشا کی مسلسل آواز سے آخر میں اٹھ ہی گیا تھا۔ آمنہ کہاں ہو یار؟ آمنہ، میں رمشا کو لے کر باہر آیا تو پھر سے آمنہ کو کچن میں پایا۔ چینی کم پڑ گئی ہے آمنہ، جاؤ چینی لے آؤ۔
अम्मा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो कुछ देर तक रुक सा गया। सब लोग खाने की मेज़ पर थे सिवाय आमना के। अम्मा ने मुझे देखा तो बुला लिया, आ जाओ नाश्ता तैयार है। देखो तुम्हारे सब बहन भाई मौजूद हैं। अम्मा अम्मा आमना कहाँ है? रिमशा को भूख लगी है। लाओ इसे मुझे दे दो और तुम फ्रेश हो जाओ, इसे मैं देखती हूँ। आज फिर आमना किचन में सब लोगों के लिए खाना पका रही है। अम्मा तो कह रही थी कि आमना कोई काम नहीं करती, बस कल ही किया था। फिर ये क्या था? आमना अपना और मेरा खाना बाहर ले आओ। शायद मेरी बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी, पर कुछ ऐसा भी था जो मुझे अच्छा नहीं लगा था। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम आमना का बस एक ही काम था, वो हर किसी की ख्वाहिशात पूरी करने में लगी रहती थी। मैं समझ चुका था आमना दिलचस्प क्यों हो गई है। मेरे घर में आ जाने के बाद आमना में भी तब्दीलियाँ आना शुरू हुई हैं। शायद मेरे जाने के बाद सब इस पर हावी हो गए हों। तभी वो थोड़ा सहम चुकी थी। वक्त गुजरता रहा, अब वो काम छोड़ भी दिया करती थी या मुझसे कह दिया करती थी और मैं खुशी से उठकर उसकी मदद कर देता था। आज अम्मा की आवाज़ आई कि आमना नाश्ता बना दो, राहिला आई है। राहिला मेरी आपा का नाम था, जिसकी शादी हमारे घर के करीब ही चाचा के घर हुई थी। आपा तकरीबन रोज़ ही हमारे घर आ जाया करती थी। आमना की कमर में शदीद दर्द था। मेरे लाख मना करने के बाद भी वो किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। क्योंकि रमशा अभी सो रही थी, इसलिए मैं आपा से बातें करने में मसरूफ़ हो गया। आपा हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी और हम सब इनको बहुत पसंद करते थे। रेहान दस्तरखान लगवा ले मेरे साथ। मैं हाँ में सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ और आमना की मदद करने लगा। ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी। जब सब नाश्ते से फारिग हुए और आमना भी रमशा को लेकर कमरे में चली गई, तब आपा और मैं हम दोनों एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ़ थे। रेहान, तुम जानते हो मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग खुश ना रहो, लेकिन मेरी कुछ नसीहतों पर अमल करो तो सुखी रहोगे। आगे तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, मैं तुम पर जबर तो नहीं कर सकती। जी आपा बोलिए। आपको मालूम है हम सब बहन भाई आपकी और अम्मा की बात को ज़रूर अहमियत देते हैं। रेहान, तुम अपनी बीवी की मदद ज़रूर किया करो, लेकिन इस हद तक जब तक तुम्हें कोई न देखे। अच्छा तो नहीं लगता तुम बर्तन उठा रहे हो और ख़वातीन वाले काम कर रहे हो। जो आदत आज धोगी उसे कल वही रहेगी। जो इसके काम है वो इसको करने दिया करो। आखिर को आहिस्ता आहिस्ता कर ही लेगी, लेकिन अगर आदत बन गई तो फिर तुम्हें हमेशा ही इसकी मदद करना होगी। सोच लो। आपा की बात मेरे दिल को लगी। दिन गुजरते रहे। आमना मुसलसल काम में लगी रहती थी। कभी मेरा दिल चाहता तो रमशा को दूध बना देता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। अम्मा नहीं चाहती थी कि मैं वापस दूसरे मुल्क जाऊं और फिर बस वहीं का होकर रह जाऊं, क्योंकि मैं मेकअप कंपनी में जॉब करता था। इस हवाले से घर बैठे कंप्यूटर था, मैं बहुत अच्छा कमा लिया करता था। वक्त गुजरता गया, सबने गौर ही नहीं किया कि आमना क्या करती रहती है। जब मेरे 3 बच्चे हो गए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरी दोनों बेटियां तो स्कूल जाया करती थीं, लेकिन बेटा अभी छोटा था। तभी मैंने और आमना ने एक फ़ैसला किया कि हम बच्चों को बेहतर तालीम देने के लिए शहर हो जाते हैं। वहाँ आमना नौकरी कर लेगी और मैं भी घर शिफ्ट करूँगा। आपा से मशवरा किया तो इन्होंने भी हामी भर ली कि ठीक है, बस अम्मा को भूल मत जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि अम्मा को साथ ले जाओ, लेकिन अम्मा अपने बच्चों को छोड़ के जाने को तैयार न थी। वो बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब ज़िंदगी बेहद मसरूफ़ थी। मैं पूरा दिन शाम तक काम करता और आमना भी जॉब में मसरूफ़ थी और बच्ची पढ़ाई में और बेटा घर पर होता। एक दिन आमना जॉब से आई तो शायद कुछ ज़्यादा ही थक चुकी थी, आते ही सो गई और हम सब भूखे रहे। अब आमना थोड़ा बीमार रहने लगी थी।
पहले की तरह चुस्त नहीं रहती थी। जॉब करके थक जाया करती थी, इसलिए अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम रात का खाना भी होटल से मंगवा लेते थे। आमना रोज़ कहती कि रेहान मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, और मैं रोज़ काम की वजह से न जा पाता। सालों साल यूं ही गुजरते रहे, ना मुझे टाइम मिला और ना ही आमना की बीमारी ठीक हुई। नहीं मालूम कैसे क्या हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब मैं खूब बीमार हुआ, पेट के दर्द ने जैसे मेरी जान निकाली हो। सिवाय आमना के मेरे पास कोई ना था। आखिर मेरे घर वाले भी तो हैं, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। एक दफ़ा फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं आमना के साथ ज्यादती करता जा रहा था, लेकिन यह एहसास शायद कुछ दिनों का होता। लेकिन फिर से वही ज़िंदगी, जिससे मेरी ख्वाहिश ये होती कि आमना जॉब से वापस आकर खाना बनाए और पूरे घर को संभाले, और जब बात मेरी मदद की आती तो मैं अपनी थकन को आगे ले आता। और आपा की वो बात कि बीवी की बेहद मदद ना करो वरना सारी ज़िंदगी ही करना पड़ेगा, मेरे दिमाग में ये बात मौजूद थी। आमना और मैं लड़ना शुरू कर देते। कभी वो टाइम न देने पर मुझसे लड़ती, और कभी मैं खाना ना बनाने पर, और कभी तेरे घर वाले और कभी मेरे घर वाले। बस यही तू में हर वक्त रहने लगी। कभी मान जाते, कभी लड़ने लगते। आज मैं बहुत उदास हूँ। आमना इसको ट्रिप लगी है और मैं खुद को काफ़ी तन्हा हॉस्पिटल में महसूस कर रहा हूँ। मैं और मेरे बच्चे, बस और कोई नहीं है। मेरे घर वाले आमना से रस्मन मिलकर जा चुके थे, सिवाय आमना की अम्मी के और कोई नहीं जो इस वक्त इसके लिए बेचैन हो। मुझे आज वो दिन याद आते हैं कि हम क्यों लड़ते थे, अपना वक्त ज़ाया करते थे। क्यों मेरी आपा ने मुझे ये नहीं कहा, रेहान अपनी बीवी की मदद किया करो, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद है। क्यों मैं आमना को हर दफ़ा गलत कहता रहा, और बस मुझे यही लगता था कि ये बस काम से भागने के चक्कर में रहती है। क्यों मैं हर दफ़ा अपने घर वालों की बात को सही समझता था। मैंने और मेरे घर वालों ने आमना को बदल डाला था। वो आमना जो ज़िंदगी जिया करती थी, मैंने उसकी खुशियाँ अपने तानों से ख़त्म कर डाली थी। मैं इसका ख्याल तो बहुत रखता था, अच्छा रखता था, लेकिन सिर्फ पैसों की हद तक। आमना तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम मेरी ज़िंदगी की साथी हो, मुझे तुम्हारे साथ की आदत है। बस ठीक हो जाओ यार। मुझे आज सब समझ आया कि वो तो खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी क्यों थक जाया करती थी। सिर्फ खाना बनाना घर के कामों में नहीं होता, और बहुत कुछ होता है। आजकल मैं भी खाना बाहर से मंगवाता हूँ और फिर भी थक जाता हूँ। पूरा दिन में 5 मिनट का आराम नहीं कर सकता। आमना तुम सच ही कहती थी। मर्द ही क्यों थकता है आखिर, औरत क्यों नहीं थकती। इसको इजाज़त क्यों नहीं होती कि वो अपनी थकन को बयान कर सके। मैं अपने सब भाइयों से यह ज़रूर कहना चाहूँगा, जो गलती मैंने की है आप लोग कभी मत करना। आप लोग कभी मत करना अपनी बीवियों के साथ। अपनी बीवियों के लिए टाइम निकालो, इनके भी नखरे उठाओ, क्योंकि वो इन सबको पसंद करती हैं। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बीवियाँ जवान और हसीन रहें, तो उसकी तारीफ़ किया करो। जो मर्द हज़रात ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी बीवियाँ जल्द ही बीमार और बूढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। और एक बात बहुत अहम है, हमारे घर वाले जितना हमसे प्यार करते हैं उतना हमारी बीवी से नहीं कर सकते। लिहाजा बीवी आपकी है, ना कि महल्ले वालों की, और इसलिए आपके घर को संभालना होता है। लिहाजा इसको मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आपके प्यार और मदद की ज़रूरत पड़ती है। जो काम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो गलत कैसे हो सकता है। अपनी बीवियों की इनके काम में मदद किया करो, ताकि अगर वो थके भी तो आपका साथ इसका सहारा बन जाए, और आपका घर जन्नत की मानंद हो, और आपका घर जन्नत की मानंद हो।